Hello everyone. Today I'm going to cover the case study of chapter 11 about the ethics. So this is an important case study. Let's read it out and complete this. All right. Das and Company, a firm of auditors, is offered appointment as auditor of a company, a prospective new client. C.S. Sukanya, one of the partners, is dealing with new client. While meeting with officers of the company, she comes to know that Sushant, CFO of the company, उसका classmate था. Okay. In fact, both of them had started CA together. However, Sushant had left CA midway due to the repeated failures and tried his luck to pursue MBA from one of the leading institutions. During initial discussions, it transpires that company is going to launch new services in the field of weather forecasting. तो ये कंपनी का धंधा है जो कंपनी स्टार्ट करने वाली है. Such services would be available on the website of company and micro weather information should be available on the payment of charges. The company requests audit firm to be visibly associated with their marketing bids. सो यहाँ पे जो कंपनी है वो ऑडिट फर्म को रिक्वायर करती है कि वो विजिबली एसोसिएटेड रहे मार्केटिंग के एरिया के साथ में भी. अज्यूम दैट फर्म चूजेस टू एक्सेप्ट द ऑफर and writes to previous auditor Walker and Company to advise whether there exist any professional reasons for them to not to accept the proposed offer. However, Walker and Company ने reply नहीं करा to the request of Das and Company. All right. उसके बाद during the preliminary discussions, it also became known that the said company has acquired all the shares. Okay. Shares of another company. Under the relevant provisions of law, financial statement of both the companies need to be consolidated and audited. Despite this knowledge, Das and Company failed to advise their client regarding the audit of CFS. तो इसमें क्या हुआ, जो दास एंड कंपनी यानी कि जो ऑडिटर वाली फर्म थी, they failed to advise their client regarding audit of CFS. Company also offers auditors कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग IT सर्विसेज पर्टेनिंग टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ कंपनी. तो यहाँ पे कंपनी ऑफर कर रही है ऑडिटर को एक और कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कि आप IT सर्विसेज भी दे दो. ऑल राइट. तो यहाँ पे ऑडिटर से बहुत काम कराए जा रहे हैं, मार्केटिंग का भी आप इनको दे रहे हो, इधर आप IT सर्विसेज भी उनसे प्रोवाइड करने को बोल रहे हो. सो दिस वॉज द केस स्टडी. नाउ लेट्स सी व्हाट दे आस्क. इट सेज कंसिडरिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन इज considering the discussion about Sukanya and Sushant, which of the following seems most appropriate? Okay. The first is, above discussion is irrelevant in the context of proposed offer. So obviously ये तो आंसर नहीं ही होगा कि आपका डिस्कशन ही irrelevant है. Look at the last option. The matter is too trivial to be reported by CS Sukanya to other partners of the firm. ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई मैटर बहुत ट्राइवल है कि वो रिपोर्ट ना कर पाए. Look at the B point. The proposed offer should be accepted by the firm. The engagement team may be headed by CS Sukanya for better coordination and results. ठीक है. C है, the proposed offer should be accepted by the firm. The engagement team may be headed by a different partner of the firm. अब बात हो रही है कि जो वो engagement है उसमें CS Sukanya should be heading it or any other different partner should be heading it. सो इफ़ वी टॉक लाइक प्रैक्टिकली तो दोनों में से कोई भी आंसर पॉसिबल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रिलेटेड पार्टी वाली बात नहीं है ना. अगर रिलेटेड पार्टी वाली बात होती तो हम CS सुकन्या को नहीं लेते एज एन ऑडिटर, बट इसमें वो वाला केस नहीं है. बट इफ़ यू लुक एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जैसा कि क्वेश्चन में भी लिखा है, यू हैव टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर. तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर उस हिसाब से होना चाहिए सी वाला, क्योंकि इन्होंने बोला इट इज ऑब्वियसली ऑफर विल बी एक्सेप्टेड बाय द फर्म, बट हु इज गोइंग टू हेड, दैट इज द क्वेश्चन. सो एंगेजमेंट टीम विल बी हेडेड बाय डिफरेंट पार्टनर ऑफ द फर्म इज मोर अप्रोप्रिएट. ओके, देखेंगे सेकेंड वाला. कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद कंपनीज न्यू सर्विसेज, आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ थ्रेट इज बीइंग फेस्ड बाय द ऑडिट फर्म. ठीक है, इसमें ये देखो, ये शब्द देखो, keeping in view request of the company to be visibly associated with company's new services. इसमें एक बार हम ज़रा पैराग्राफ में दोबारा से जाकर चेक ऑन करेंगे. देखो यहाँ पे लिखा है विजिबली एसोसिएटेड. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपनी रिक्वेस्टेड द ऑडिट फर्म टू बी विजिबली एसोसिएटेड विद देयर मार्केटिंग बिड्स. इसका मतलब ये उनकी मार्केटिंग को क्या कर रहा है, एडवोकेसी कर रहा है. जहाँ पे जो ऑडिटर है वो क्या काम कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो उनकी मार्केटिंग को एडवोकेट कर रहा है, वो उनकी मार्केटिंग बढ़ा रहा है. इसका मतलब उनका प्रोडक्ट ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये खरीदो. इसका मतलब ऑडिटर यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके प्रोडक्ट को एडवोकेट कर रहा है. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एडवोकेसी थ्रेट होगा. देयर इज़ नो नीड टू थिंक एनीथिंग एल्स अबाउट. ठीक है, ये हमने सबसे पहले तो हमने वर्ड देखना है कि कहाँ पे वर्ड आपका मैच हुआ. तो हमने ऊपर जाके देखा कि आपका वर्ड यहाँ पे
मैच हो रहा है विजिबली एसोसिएटेड वाला, एज यू कैन सी दिस। तो इसमें हमने बात करी कि इन्होंने आगे मार्केटिंग वाली बात बोली थी। तो जब इन्होंने मार्केटिंग वाली बात आगे बोली, इसका मतलब मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाला ले लो। तो जब आप किसी के प्रोडक्ट को एडवोकेट कर रहे हो, उसका मतलब आप किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसके प्रोडक्ट की एडवोकेसी कर रहे हो। सो इसलिए यहाँ पे एडवोकेसी थ्रेट आएगा। ऑल राइट, come on the third question. The previous auditors, Walker and company, have not replied to the communication of Das and company. Which fundamental principle of the professional ethics is not followed? तो इसमें हमें बताना है कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोफेशनल एथिक्स का फॉलो नहीं हुआ है। तो इसमें आपका जैसे कि इसमें लिखा है कि दे हैव नॉट रिप्लाइड टू द कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के कम्युनिकेशन को रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो इसमें आपका प्रोफेशनल बिहेवियर दिख रहा है कि कितना अच्छा है और कितना नहीं। तो इसमें आपका प्रोफेशनल बिहेवियर का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये यहाँ पे डिफीट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेशनल बिहेवियर, जस्ट बिकॉज उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई नहीं किया था टू द कम्युनिकेशन ऑफ दास एंड कंपनी। लेट्स गो ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. Das and company failed to advise the company regarding audit of CFS. Which fundamental principle of professional ethics is violated? तो इन्होंने दे फेल टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ CFS. जो भी ऑडिट हुआ उसके रिगार्डिंग दास एंड कंपनी जो ऑडिटर फर्म थी ये एडवाइस ही नहीं कर पाई। तो इसमें इनका कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट होता है? इसमें आपका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वाला जो प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो डिफीट हुआ है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो एडवाइस नहीं कर पाए रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ CFS। तो इसमें ना इनकी ड्यू केयर थी और ना इनका कोई कॉम्पिटेंस था। अगर वो एडवाइस ही नहीं कर पा रहे हैं तो उनका कोई भी यहाँ पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यहाँ पे वॉयलेट होगा। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ वाले का इन्होंने क्वेश्चन बोला, which of the following statements is most appropriate regarding providing offer of work of IT services by the auditors to the company? अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि कौन सा बहुत appropriate statement होगा, क्योंकि जो यहाँ पे ऑडिटर है वो IT सर्विसेज भी दे रहा है। तो अगर वो IT सर्विसेज भी देगा, ठीक है, अगर एक ऑडिटर कंपनी में IT सर्विसेज दे रहा है और फिर वो उसी कंपनी का ऑडिट भी करेगा तो सर्विसेज भी वही प्रोवाइड कर रहा है IT की और उसको फिर रिव्यू भी वही करने वाला है। तो यहाँ पे तो आपका सीधा सीधा सेल्फ रिव्यू थ्रेट आया ना, क्योंकि हम अपने ही काम को रिव्यू थोड़ी ना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट निकल के आता है, क्योंकि वो IT सर्विसेज प्रोवाइड भी कर रहा है और उसके बाद वो उस सर्विसेज को रिव्यू भी करने वाला है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज ऑन होगा. So you can check the answers, they are correct as we can see in these answers. So this was all about your case study and we'll be getting more case studies explanation like this, so stay updated. Thank you.